کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو کسی میریکلز کی یا ہیلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات مینٹلی پرابلم ہوتی ہیں، ازدواجی پرابلم ہوتی ہیں، بچوں کی پرابلم ہوتی ہیں، فائنینشلی پرابلمز ہوتی ہیں، اور کسی نہ کسی جگہ پر انسان اس سے رہائی چاہتا ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہماری ٹریٹمنٹ کا علاج آج سے 2000 سال پہلے ہی کر دیا گیا تھا. اگر ہم شفا نہیں حاصل کر پاتے یا کوئی ایشو ہے تو وہ پرابلم ہماری ہے. خدا نے ہمارے لیے بندوبست بڑی اچھی ویکسین یعنی کہ یسوع کا خون ہمارے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہ تو انجیکشن ہے نہ کوئی ایسی ٹیبلٹ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی میڈیسن ہے ہی نہیں ہے. تو آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جب کلام سنیں تو آپ نے اپنے دل میں کلام کو، ایمان کو جگہ دینی ہے. جتنے بھی یسوع مسیح نے ہیلنگ کی اور یسوع کی منسٹری کا یہ فوکس تھا کہ وہ لوگ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے تھے ان کے رہائی کے لیے اس نے ہمیشہ یہ کام کیا اور لوگوں کو چھڑایا. جب مصر سے بنی اسرائیل کے لوگ نکلے، خدا نے اپنے قدرت والے ہاتھ سے بڑھا کر انہیں مصر سے رہائی بخشی، اور یہ تقریباً 400 سال کی غلامی کے بعد یہ رہائی ہوئی تھی. حضرت یوسف کے دور میں بنی اسرائیل کے لوگ ملک مصر میں خوش رہے، لیکن جب وہ مر گیا تو پھر حالات ان کے خلاف ہو گئے تھے. اب بڑی پرتشدد ظالمانہ یہ غلامی تھی، اور فرعون اور مصری ان سے بہت زیادہ جبری مشقت کرواتے تھے. خدا نے نکالا انہیں موسیٰ کے وسیلہ سے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو بحر کلثم آ جاتا ہے. خدا نے کلثم کو 2 حصے کیا اور بنی اسرائیل کے لوگ پار ہو گئے. لیکن اس کے بعد جب فرعون، اس کے سپہ سالار، اس کے عمرہ اور سپاہی جب وہاں سے گزرے اسی سمندر سے، تو وہی پانی ان کے لیے موت بن گیا. بنی اسرائیل کے لیے وہ زندگی بن گیا تھا، لیکن فرعون کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے وہ موت بن گیا. بیسیکلی یہ عزیزو، یہ ایک جو بیابانی زندگی ہے بنی اسرائیل کی، اور لاسٹ سنڈے بھی میں نے بتایا کہ یوحنا، یسوع، ایلیا، یہ سب موسیٰ، ان کی زندگی میں ایک بیابانی زندگی آئی ہے. جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. بیابانی ہماری زندگی میں آتی ہے ہمیں خالص کرنے کے لیے. اور جب انہوں نے بحر کلثم پار کر لیا اور پھر انہوں نے ایک گیت گایا تھا جو ان کا نیشنل سانگ تھا، جیسے ہمارے ملک کا ہے پاک زمین شاد باد، اس طرح یہ پورے ایز اے نیشن اس سے نکلنے کے بعد ایز اے نیشن انہوں نے شکر گزاری کا گیت گایا تھا جس کو ہم پڑھتے ہیں. لیکن جب یہ نکلے ہیں کلثم سے، گیت گایا ہے، تو اس کے بعد پھر 3 دن کا سفر تھا. یہ شور کا بیابان تھا اور 3 دن کا یہ سفر، اور لکھا ہے کہ ان 3 دنوں میں کسی جگہ پر کوئی پانی نہیں ملا. اب
چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں, بزرگ بھی ساتھ ہیں, جوان بھی ساتھ ہیں, جانور بھی ساتھ ہیں, ہر طرح کا جانور ان کے ساتھ ہے. لیکن 3 دن سے ان کو پانی نہیں ملا. اور پانی زندگی کا ایک بڑا ضروری حصہ ہے. اگر ہمیں پیاس لگی ہو اور پانی نہ ملے چند سیکنڈ, منٹوں کے لیے, گھنٹوں کے لیے, تو ہماری کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ اب بنی اسرائیل کی کیا پوزیشن ہوگی کہ 3 دن سے کسی کو پانی نہیں ملا ہے کہ پانی پی لیں, تازہ دم ہو جائے. اب 3 دنوں سے اب کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے سامنے موت نظر آ رہی تھی. ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اب چونکہ پانی نہیں ہے, ہم مر جائیں گے, ہمارے بچے مر جائیں گے, ہمارے جانور مر جائیں گے. کیونکہ پانی روٹی کے بغیر 2-3 دن چل جاتے ہیں, لیکن جو پانی ہے یہ بڑا ہی ضروری. ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اگر نہ بھی پیے تو. ویسے بھی بیابان, ویسے بھی دھوپ گرد, ادھر سے پانی نہیں ہے, ادھر سے سفر ہے, یہ اپنے اصلی گھر میں تو تھے نہیں. یہ بہت سارے چیلنج ان کی میرے عزیزوں زندگی میں تھے. اب وہی زندگی جو انہوں نے بحر قلزم کے بعد ملی تھی, اب انہیں موت نظر آ رہی ہے کہ ہم اب زندہ نہیں رہیں گے. لیکن لکھا ہے کہ وہ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے, موسیٰ کے خلاف ہو گئے, اور یہ بھول گئے تھے کہ خدا نے کیسے ان کو بحر قلزم سے نکالا ہے. ایک بگ میریکل ہو چکا تھا ان کے لیے کہ کس انہوں نے اپنے سامنے دیکھا تھا. ہم شاید بائبل مقدس پڑھ کر یہ بات کر رہے ہیں, لیکن بحر قلزم کو 2 حصے ہوتے ہوئے انہیں خود ڈائریکٹلی ان ریالٹی دیکھا تھا. اور سمندر بہت بڑا ہوتا ہے, اور انہوں نے دیکھا تھا کہ خدا نے کیسے موٹر وے بنا دیا تھا. انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب وہ مصر میں تھے تو کیسے خدا نے مصریوں پر 10 آفتیں بھیجی. وہ دیکھتے رہے ہیں کیسے دریا کا پانی خون بن گیا ہے, کیسے ٹڈیاں ہیں, مینڈک آئے ہیں, اور کیسے ان کے پلوٹھے مرے, جانوروں کے پلوٹھے مرے, کیسے پورے مصر میں ماتم تھا اور بنی اسرائیل کے لوگ جشن میں. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوئی تھی. شاید میں یا آپ ہم معجزات کی بات کریں, الیشا نے کیے, ایلیا نے کیے, یسوع مسیح نے کیے, لیکن ہم یہ سارے معجزات بائی فیتھ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. ہم نے پریکٹیکلی دیکھا نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم کلام پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. لیکن بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پریکٹیکلی اس ابر کو دیکھا ہے, اس آگ کے ستون کو دیکھا ہے, خدا کو بولتے دیکھا ہے. موسیٰ کے ساتھ کیسے خدا کوئی سینہ پر اترتا, پہاڑ ہلتا, دعا چھا جاتا, اور کیسے خدا کی آواز. یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی تھی, وربلی نہیں تھا, کوئی کہانی نہیں تھی. یہ چیزیں ان کے سامنے ہوئی تھی. لیکن 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے, تو اب اپنے اس دور کے پاسٹر کے یہ خلاف ہو گئے ہیں اور بولنا شروع کر دیے ہیں. اور پھر خدا نے موسیٰ کو کیا دکھایا تھا جی؟ ایک پیڑ, ایک درخت دکھایا تھا. خدا نے ایک درخت دکھایا تھا, اور خدا نے کہا تھا, اس وقت کو یاد رکھیں کہ وہاں پر پانی تھا ان علاقوں میں, لیکن وہ کھارا پانی تھا اور وہ کڑوا پانی تھا. اسے پینے کے لیے وہ یوز نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ وہ اور بھی بیماری لاتا ہے. تو خدا نے درخت دکھایا. حالانکہ جہاں پر کھارا پانی ہوتا ہے یا کڑوا پانی ہوتا ہے, وہاں نباتات بہت کم زندہ رہتی ہے, وہاں پر اتنی زیادہ کاشتکاری نہیں ہوتی ہے, وہاں پر اتنی زیادہ فصلیں نہیں ہوتی ہے. لیکن خدا نے موسیٰ کو ایک درخت دکھایا, اور خدا نے اسے کہا کہ اس درخت کو اس پانی میں ڈال دے. اور اس جگہ کا نام مارا تھا, جس کا مطلب ہے کڑواہٹ, بٹرنس یا تلخی. اس جگہ کا نام تھا. تو پھر خدا نے کہا کہ اس کو ڈال دو اس میں, تاکہ اس کا کھارا پن ختم ہو جائے, اس کی کڑواہٹ ختم ہو جائے,
इसके जो भी कौड़ है वो खत्म हो जाए। ये एक शबीह थी यीशु की सलीब की। ये एक शबीह थी। जिस तरह बलि पर हम सांप देखते हैं, तो ये भी एक शबीह थी कि जब लोग उस सलीब पर जो मरा है, बात सलीब की नहीं थी, बात उसकी थी जो उस पर मरा है। यीशु मसीह की बात थी। सलीबें तो उस दौर में बहुत सारे लोगों को रोमियों के दौर में दी जाती थी, लेकिन वो सलीब इसलिए कीमती थी क्योंकि वो यीशु की सलीब थी। लेकिन बात चलती है कि जो उस सलीब पर मरा था, और ये एक शबीह सी, ये एक रेवलेशन, ये एक मुकाशा उन्हें दिया गया था कि आने वाले वक्त में जो कोई भी इस जिंदगी के दरख्त के पास आएगा उसमें से कड़वाहट जाती रहेगी। यह पैगाम था। बाज़ औक़ात हम भी चलते चलते अपनी आदतों की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से हम भी उस बियाबानी जिंदगी में चले जाते हैं जहां पर कड़वाहट है, जहां पर बीमारी की कड़वाहट है, जहां पर मियां बीवी के बीच में कड़वाहट है, जहां पर मां बाप और बच्चों के बीच में आप कह लें कि तलखी पाई जाती है, बदतमीजी पाई जाती है, या कारोबार के बीच में या रुपए पैसे के बीच में लोगों की कड़वाहट होती है। शिकायत कंप्लेन, ये सारी चीजें हमारी कड़वाहट को ज़हर करती हैं और हम बोलते रहते हैं। पूरी कौम को शायद कुछ और ना मिला, इन्होंने उस वक्त के पास्टर या अपने लीडर के खिलाफ या खुदा के खिलाफ इन्होंने बोलना शुरू कर दिया मेरे अजीजों। और फिर खुदा ने दिखाया इन्हें कि ये दरख्त है, और यीशु को जिंदगी का दरख्त भी कहा गया है। इसलिए यीशु मसीह ने यह भी कहा था, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। तो यह दिखाया गया कि जो कोई, और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि जिस तरह मूसा के बियाबान में बलि पर सांप लटकाया गया था, इब्ने आदम भी उस पर लटकाया जाएगा। और फिर यही बात है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा, जो कोई उसकी सलीब की तरफ देखेगा, जो कोई यीशु मसीह की तरफ देखेगा, जो कोई उसकी कुर्बानी की तरफ देखेगा, उसके अंदर से कड़वाहट जाती रहेगी, बिटरनेस जाती रहेगी, और उसकी जिंदगी स्वीट हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, आजाद हो जाएगी, रहाई मिल जाएगी। जो कोई जिंदगी के दरख्त को, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी मिलेगा, उसमें बीमारी की कड़वाहट नहीं रहेगी, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। और ऐसा हुआ। उस दरख्त को डाला और पानी बिल्कुल मीठा हो गया। आज भी यीशु की सलीब में, यीशु के खून में और यीशु के बदन में आज भी यही कुदरत पाई जाती है। अगर अभी भी किसी की जिंदगी में हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है, बहन भाइयों के बीच में, वाइफ हस्बैंड के बीच में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, कौड़े हो जाते हैं, जली जली बातें करते हैं। बच्चे भी कई बार अपने माँ बाप तो पंजाबी च कह लो अक्के होंगे ने, तो कई बार माँ बाप भी अक गए होंगे ने। ऐसा होता है। लेकिन अगर यीशु, उसकी सलीब, उसका कलाम बीच में है, तो हर चीज को वो मीठा बना सकता है, हर तरह के खारीपन को वो ठीक कर सकता है, हर तरह की कड़वाहट को दूर कर सकता है। और किसी जगह पर, किसी अज़वाज के बीच में, बच्चों के बीच में, कारोबार के बीच में, रुपए पैसे में कड़वाहट है, जिसका मतलब है जिंदगी का दरख्त उसके बीच में नहीं है। इसका मतलब है यीशु बीच में नहीं है। जब यीशु आ जाता है तो फिर हालात वो नहीं रहते हैं। यीशु के आने का पर्पज ही यही है, वो हमें चेंज करे। इसलिए लिखा है कि उसने हमारी सारी बातों के लिए, हमारी लानतों के लिए, हमारी बीमारों के लिए, हमारे गुनाहों की माफी के लिए वो सारे गुनाह लेकर सलीब पर चढ़ गया था। उसने हमारे लिए इलाज का बंदोबस्त कर दिया है। और चूंकि हम फिर भी कड़वे रहते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात शायद हम मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हुए होते। ये मिस्र से निकल आए थे, लेकिन शायद इनकी रहाई मुकम्मल रहाई नहीं हुई थी। इनके अंदर से मिस्र नहीं निकला था, इनके अंदर से मिस्रियों की बातें नहीं निकली थे। इन्हें वो प्याज, वो खीरे, वो टमाटर, वो गोश्त उस गुलामी से निकले नहीं हैं। वो मेंटली तौर पर फिजिकली निकल आए हैं, बट मेंटली उनका ध्यान पीछे मिस्र ही में रहा है, जैसे लूत की बीवी का ध्यान सदोम और मोरा के अंदर था।
بعض اوقات نکل آتے ہیں بٹ ہم چینج نہیں ہوتے, تبدیلی نہیں ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہم بیمار رہتے ہیں. ہمارا روپیہ پیسہ, ہمارا خاندان, ہمارا کاروبار, یہ مشکلات, یہ مصیبتیں ہمیں چھوڑتی نہیں ہیں, کیونکہ زندگی کا درخت ہمارے بیچ میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ یہ درخت, حالانکہ وہ لاکھا ادھر درخت کی بات نہیں تھی, لیکن خدا نے دکھایا اس کو ڈال دے, اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے پانی پیا, اور پھر وہاں پر خدا نے شریعت دی, اور وہاں پر خدا نے پھر کہا میں خداوند تیرا شافی. خدا نے شفا دی پانی کو. یہ جو مرنے کے قریب تھے خدا نے ان کو بھی شفا دی. خدا نے کہا I am the God who healed you. ہم اکثر یہ کہتے ہیں میں خداوند تیرا شافی ہوں, اور اگر اس کے بہت سارے تراجم ہیں, اس بات کو یاد رکھیں. بعض اوقات ہم بھی اپنی زندگی میں نا مذہبی ہوتے ہیں, مذہبی رسومات پر عمل کرتے رہتے ہیں کہ شاید مذہبی رسومات کرنے سے ہمیں رہائی مل جائے گی, یا شفا مل جائے گی, یا یہ کرنے سے یا وہ کرنے سے, یا چرچ میں یہ دینے سے. ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی ریلیجس ایکٹیویٹیز ہمیں نجات نہیں دے سکتی ہے. کوئی بھی ریلیجس ایکٹیویٹیز ہمیں ہیل نہیں کر سکتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی بیمار ہوتے ہیں. تو جب خدا نے یہ کہا کہ دیکھ میں خداوند تیرا شافی ہوں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں تیرا ہیلر ہوں, میں تیرا ریپیئر کرنے والا ہوں. بعض اوقات ہماری زندگی, ہمارا ذہن منتشر ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, ہم بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہاں پر اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ میں تجھے ریپیئر کرنے والا ہوں. یعنی کہ میں جیسے رفو کر ہوتا ہے, جیسے چیزوں کا رفو کیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ساز کو دیکھیں اور پینٹ کسی جگہ سے پھٹ جائے تو ہم اسے رفو کراتے ہیں اسے پھر سے, تاکہ ہم دوبارہ یوز کر سکیں. تو یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہیلر بھی ہوں, میں تمہارا ریپیئر کرنے والا بھی ہوں, اور میں تمہیں چنگا بھلا کرنے والا بھی ہوں. اس کے بہت ساری میننگ ہے کہ میں تمہیں چنگا بھلا کرنے والا بھی ہوں, اور میں تمہیں ترقی بھی دے سکتا ہوں, میں تمہارا مستحق مددگار بھی ہوں, اور میں تمہیں اچھا بھی کر سکتا ہوں. کیونکہ یہاں پر خدا نے کہا کہ میں یہوہ رافع ہوں, یعنی کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. جب باپ ابراہیم اس مقام پر جہاں پر اسحاق کو قربان کرنا تھا, تو بتایا گیا آپ کو کہ اسحاق نے پوچھا برا کہاں پر ہے. یہ ایک ریولیشن سوال تھا, اور اس کے باپ ابراہیم نے بھی جواب دیا تھا خدا آپ ہی برا مہیا کرے گا. اور پھر خدا نے وہاں پر برا مہیا کیا, اور پھر خدا نے وہاں پر بھی اس چیز کو ڈکلیئر کیا تھا I am your provider, میں تمہارا یہوہ یاری ہوں. اس بات کو یاد رکھے, جب ہم خدا کے نام لیتے ہیں, اگر اس نے کہا کہ میں خدا تیرا شافی ہوں, جس کا مطلب ہے کہ وہ شافی ہے, وہ شفا دے سکتا ہے, وہ ہمارے کورونے کو ختم کر سکتا ہے, وہ ملکوں سے کورونے کو ختم کر سکتا ہے, وہ ہماری فیملی کو وبا سے آزاد کرا سکتا ہے. وہ ہمیں بے شک بیماری خاندانیاں ہیں, پرانی ہیں, بڑی دیر سے ہیں, لیکن اس بات کو یاد رکھے جب خدا یہ کہتا ہے I am your healer, تو اس بات کو یاد رکھے خدا کر سکتا ہے, پاسٹر نہیں کر سکتا ہے, کہ مشن نہیں کر سکتی ہے, خدا ہمیں ہیل کر سکتا ہے. اس لیے اس نے یہاں پر ڈکلیئر کیا, اناؤنس کیا کہ میں یہوہ رافع ہوں, میں یہوہ یاری بھی ہوں, میں مہیا بھی کر سکتا ہوں. جیسے ابھی گواہی آ رہی تھی کہ خدا نے شادی میں مدد کی ہے, خدا مدد کرتا ہے. جب آپ اس یہوہ یاری کو کہتے ہیں کہ خدا ہم تھک گئے ہیں مدد کر, خدا اس بیماری سے تھک گئے ہیں, تو یہوہ رافع ہے, تو یاری ہے, تو خدا یہ کرتا ہے. اس سے خدا نے یہاں پر یہ سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ میں خداوند تیرا, میرے پیچھے بولے, میں خداوند تیرا شافی ہوں, یعنی کہ میں یہوہ رافع ہوں. سوال یہ ہے, بیماری تو آ جاتی ہے, سب کو آ جاتی ہے. کئی بار جیسے آج کل کورونا ماسک ہم نے بھی لگائے ہوئے ہیں, یہی بیماری کر لیں لگ جاتی ہے, ہو رہا ہے. اگر ایک گھر میں ایک کورونا ہوا تو بعد میں ساری لائن لگ گئی, ہو رہا ہے, یہ سچ ہے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, ایک سے دوسرے کو بیماری لگ سکتی ہے.
या बाज़ औक़ात कोई चीज़ें ऐसी खा लेते हैं, कोई ऐसी पॉइजन वाली चीज़ें खा लेते हैं, खुराक खाना ऐसा खा लिया वो लड़ जाता है, बंदे बीमार हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर कोई बीमार है, कोई खादम बीमार है, तो हमने ये भी फतवा देना होता है, इन्हें चंदा खादा से निकलन दिया और कोई नहीं कहना। अगर आप ही बीमार होंगे, कलीसिया आप ही बीमार हो दे, बस खुदावंद वालों ज़माइश सी साढ़े ते, आप ही साढ़े ते ज़माइश ही, तो जब पार ही बीमार हो गया तो इन्हें चंदा खाता है। बाकी ये चीज़ जो है सच है। बाकी हम फौरन अगर कोई और बीमार है, ना बड़े प्यारे काम कितने ने बीमारी होना सी, ये मतलब कि पारी के अलावा भी कोई और बीमार हो जाए तो बाज़ औक़ात हम बस एलिगेशन लगा देते हैं, इस वजह से बीमार हुआ, इस वजह से बीमार हुआ, इस वजह से बीमार हुआ। आज से 3-4 महीने भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि बीमारी कहाँ से आती है, लेकिन यहाँ ज़रा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। इसलिए नंबर 1 बिब्लिकल बाइबल मुकद्दस की रोह से बीमारी कहाँ से आती है, पढ़ेंगे नहीं लेकिन आप लिख सकते हैं। लूका 13 बाब उसके 10 से 16 आयत में लिखा है कि यीशु इबादत खाना में है। यीशु कहां पर है? इबादत खाना में। और वहां पर एक औरत है, वो 18 बरस से किसी बदरू के बायस उसकी कमजोरी है। और उसकी कमजोरी क्या है कि वो कुबड़ी हो गई है। किसने कुबड़ा किया? पढ़ ले जाकर, पढ़ लीजिएगा लूका 13 बाब 10 से 16 पढ़ लीजिएगा जाके, अभी नहीं पढ़ेंगे। किसने कुबड़ा किया है? इब्लीस ने। यीशु की ज़बान मुबारक से ये लफ्ज़ निकले हैं कि ये शैतान का असल काम है हमें बीमार करना। अब हमने तो अक्सर यही केस देखे हैं ना कि बंदे हट्टे कट्टे होंगे ने तो बुजुर्ग हाजिर हो रही ने, लेकिन यहां पर डिफरेंट केस है। बाइबल कह रही है, ये लिविंग ब्रांच की बाइबल नहीं है, ये किसी मिशन की बाइबल नहीं है, ये खुदा का कलाम है। और वहां पर यीशु ने कहा, वहां पर हम कलाम की बात करते हैं, यीशु की बात करते हैं कि यीशु ने कहा कि ये कमजोरी के बायस है। और उस कमजोरी किसने पैदा की है? बदरू ने कमजोरी पैदा की है। और फिर जो उसका ये कुबड़ापन है, हो सकता है उसका यहां से कुब सारा निकल आया हो, सीधी नहीं हो सकती थी। 18 साल हो गए है, इबादत खाना में। लिसन, कहां पर है? इबादत खाना में। उस दौर के चर्च में है, इबादत खाने में। लेकिन 18 साल से बदरू उसके साथ है, 18 साल से कुबड़ापन उसके साथ है। कलाम ये कह रहे, इसको डिटेल से पढ़े। 18 साल से डिलीवरेंस नहीं हुई है, रहाई नहीं है। 18 साल से वो आ रही है, चंदे भी दे रही है, रोजा भी रखती होगी, दुआ भी हैकल की तरफ मुंह करके करती होगी, लेकिन फ्रॉम द 18 years वो उसी कुबड़ेपन में है। और ये कुबड़ापन फिजिकल वीकनेस नहीं है, ये जो कुछ भी है इसकी जो बेस है वो डेविल है, शैतान है, इब्लीस है, बदरूहे हैं, जिन्नात है, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद एक और शख्स, मत्ती 17 बाब आप लिख सकते हैं 14 से 18 आयत में। यहां पर एक शख्स है, पहले अपने बेटे को शागिर्दों के पास लाया, ठीक ना हुआ। फिर वो अपने बेटे को लेकर गया है यीशु मसीह के पास और कहने लगा, मैं तेरे एल्डरां को लाया से उन्होंने कोई नहीं गल बनी। यही है ना, मैं तेरे एल्डरां के पास आया था, मैं जिन्हें नाल भर्ती कितने ने उन्होंने को लाया, कोई गल नहीं बनी। और फिर लिखा, प्रॉब्लम क्या है? वहां पर लिखा है कि बदरू इसे सताती है। बदरू उसे क्या करती थी? सताती थी। और फिर लिखा है, उसे सताती ही नहीं थी बल्कि उसको मिर्गी के दौड़े पड़ते थे। अब डेफिनेटली आप कहेंगे साइंस जो कुछ मर्जी कहे, उनके अपने तजर्बात है, अपने उनकी रिसर्च है, लेकिन यहां पर कहा गया है बदरू की वजह से उसको क्या पड़ती थी? मिर्गी का दौड़ा। कभी पेंदा देखा किसी तो ना ही देखो तो चंगा, देखिए ये बुरा पड़ता है, दंदर पड़ जाती है, बंदा अकड़ जाता है, मुंह से जाग निकलती है। सिंपल ये इसके साइन हैं जब मिर्गी पड़ती है। सिर्फ मिर्गी पड़ती ही नहीं थी बल्कि लिखा है कि वो बदरू उससे पानी में और आग में छलांग लगाने के लिए मजबूर कर देती थी और वो पानी में कूद जाता था। ये कलाम में लिखा है, आप पढ़े मत्ती 17 बाब में जाकर, 17 बाब उसकी
14 से 18 कलाम में लिखा है कि वो बदरू उसे खुदकशी पर मजबूर कर देती, उसे मरने पर मजबूर कर देती। वो अपने आप को देखता ही नहीं था, समझ नहीं थी। वो आग में छलांग लगा देता था। वो कोठे से भी छलांग लगाता होगा, अगर आग में जा रहा है, पानी में जा रहा है, दरिया में जा रहा है, मिर्गी भी आ रही है, बिहाइंड क्या है, इब्लीस उसे कर रहा है। बदरू लिखा है। यानी कि बदरू कैसे कैसे यीशु मसीह इसलिए है, बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारी जगह पर कि वो लोग जो इब्लीस के हाथों दुख उठाते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियों के पीछे बिहाइंड डेविल है, इब्लीस है। अब हम नहीं मान सकते कि कुबड़ापन हो तो आप तो ये कहेंगे जिसकी बचपन से रीढ़ की हड्डी का मसला था, या अगर कि हम कहेंगे कि ये छलांगे लगा रहा है आग में तो हम कहेंगे ये मेंटली पागल हो गया। लेकिन यहाँ पर दोनों वाकयात में ये लिखा है कि बुजुर्ग हैं उससे ये करवा रहे थे। बुनियादी तौर पर इब्लीस हमें बीमार करता है, इब्लीस हमें कमजोर करता है, इब्लीस हमें दुख देता है और वो हमें देता रहता है कंटिन्यूली। ये 18 साल से है, 18 साल से इसको फेस कर रही है ये औरत। हैकल में भी जाती है, दुआएं भी है, ये भी कभी किसी के पास अपने बेटे को लेकर जा रहा है, लेकिन आखिर में दोनों को शिफा मिली है तो यीशु के कदमों में मिली है। यीशु के पास आकर शिफा मिली है। सारे नुस्खे उन्होंने आजमा लिए होंगे, सारे मबूद उन्होंने चेक कर लिए होंगे, लेकिन दुनिया का आलमगीर हीलर, यूनिवर्सल हीलर एक ही साथ है और वो यीशु मसीह के साथ है, जो यहूदा का शर बब्बर है, जो किंग ऑफ ग्लोरी है, जो जलाल का बादशाह है, जिसके बदन में और खून में कुदरत पाई जाती है। खरूज 15 में लिखा है, देख मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। और फिर वहां पर लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, अमल करोगे, तो वो बीमारियां जो मिस्रियों के बीच में थी, वो बीमारियां जो गैर कौमों के बीच में थी, वो तुम्हारे बीच में ना आएगी, क्योंकि आई एम योर हीलर। मैं यहोवा राफे हूं, मैं शिफा देता हूं। मैं तुमसे ये एग्रीमेंट करता हूं, मैं तुमसे ये एग्रीमेंट करता हूं, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम मेरे साथ ठीक तरह से चलोगे तो कोई कोरोना, कोई बीमारी, कोई लाचारी तुम्हें छू नहीं सकती है, क्योंकि मेरी साथ शाफी है। मैं ही तुझे रिपेयर कर सकता हूं, मैं ही तुझे रफू कर सकता हूं, मैं ही तुझे तरक्की दे सकता हूं, मैं ही तेरे खजानों को बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैं यहोवा यारी भी हूं और मैं यहोवा राफे भी हूं। हालेलुया। बागे अदन में आदम और हवा ने नाफरमानी की, वहां से सिलसिला शुरू हुआ और फिर लिखा है, औरत से कहा तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी, मर्द से कहा ये जमीन तेरे लिए क्या गाएगी, ऊंट कटारे। सारी दुख देने वाली चीज है ना, कंडे जिन्होंने कहते हैं, ये नाफरमानी की वजह से। जब हमारी जिंदगी में नाफरमानी होती है तो बीमारी हम पर हैवी रहती है, बीमारी का हाथ हम पर रहता है। नाफरमान, डिसओबीडिएंट स्पिरिट, ये ठीक नहीं, ये बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी है, ये बड़ा ही सत्यानाश करती है। कहां पर वो खुदा के जलाल में थे, कहां पर उनके खुदा के साथ फेलोशिप थी, कहां पर उनके खुदा के साथ गुफ्तगू थी, लेकिन डिसओबीडिएंट स्पिरिट उन्हें बाहर ले आई। और जहां पर अब वो नंगे भी हो गए हैं, पत्तों से छुपा रहे हैं, और दुख दर्द भी आ गया, लानतें भी आ गई। नाफरमानी कभी अच्छी नहीं होती है। जहां पर समझ आ जाए अपनी जिंदगी में, कारोबार में, अपने बच्चों में, अपने खानदान में, अपने ज़वाजी बंधन में, अपने रिलेशन में, ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरेंस खुदा के कलाम को दे, खुदा को दर्जा दे। खुदा को दर्जा देंगे, इस बात को याद रखें, बहुत सारी चीजों में आप फाते होते चले जाएंगे। हम अपनी जिद हमारी खुद ही, हमारी ना हमारी ये सेल्फिश स्पिरिट या हमारी ये हमें सरेंडर नहीं करने देती है, ये हमें छोटा नहीं बनने देती है, जिसकी वजह से वी फेस प्रॉब्लम। हम सफरिंग से गुजरते हैं, हम बीमारी से गुजरते हैं। बीमारी हमारे घर से खत्म नहीं होती है, एक बीमार फिर दूसरा बीमार फिर तीसरा बीमार, क्योंकि वी लिव इन डिसओबीडिएंट स्पिरिट। हम नाफरमानी की रूह में आते हैं और नाफरमानी की रूह में खुदा के घर में भी आते हैं। इससे ऑलवेज ट्राई कि आप ओबीडियंस करें खुदा के कलाम की, जो कुछ समझ आ जाए। एक और वजह भी है, दूसरा सैमुएल 13 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, और अमनून ऐसा कुड़ने लगा कि वो अपनी बहन तिमर के सबब से बीमार पड़ गया, क्योंकि वो कुंवारी थी। ये शख्स भी बीमार हो गया, दाऊद का बेटा है, बीमार हो गया, लेकिन ये इश्क का बीमार है। कहीं होते ना इश्क दे बीमार,
हैं सुक जाते हैं, तिल हो जाते हैं, खून सुक जाता है। एवं धक्के नाल ये भी लिखा है, ये दाऊद का बेटा था, अपनी तिमर का बाप और अमनोन का बाप एक था, माँ इसकी फर्क थी, बड़ा क्रोध रेशा था, लेकिन जो कुंवारी थी ये उस पर आशुक हो गई। ये कलाम में लिखा है। फिर मैं पढ़ने लगा, सुना क्या लिखा है। और अमनोन ऐसा कुड़ने लगा और जिन्हें कहते होके लेंदा ये ब्याह के चक्कर च पै गया सी कि वो अपनी बहन तिमर के स्वभाव से बीमार पड़ गया। इश्क भी बीमार कर देता है, नहीं करता, कर देता। पहला तो लोग ब्लेड मार के खत लिखते हैं, खून करके गवाही देते हैं। शायद सुना होगा किसी से, है? आज भी कई मुझे नहीं पता लेटेस्ट क्या होता है, लेकिन पहले तो ये होता था खून निकाल कर सफेद लगा के धीरे भेज दे, कबूतर दिया था। तो ये भी इश्क का बीमार है। तो बस का ये इश्क की बीमारी भी बड़ी पैड़ी है। खानदान तबाह हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाते हैं, टेंशनें आ जाती हैं, माँ बाप को दूसरे मुजाहिर में लोग आज हो रहा है ना। पिछले दिन में वो कराची की लड़की थी, छोटी थी, सब मीडिया ने क्रिश्चियन ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन उसने बंदे का खेड़ा नहीं छोड़ा, पीछा नहीं छोड़ा। इश्क है ना, बीमार कर देता है। सारे खानदान को बुखार हो गया, बीमार हो जाता है बंदा, बाकी डिप्रेशन में चला जाता है। कई लोग इश्क में वाकई रह गए, कई लोग वाकई रह गए, ना पढ़न जोगे रहे ना काम करन जोगे रहे, और बीमारी आ जाती है। जब आप सोचते रहते हैं, मैं सोचते रहता है, फिर आपका जहन बीमार हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए अमनोन की नेचर भी बीमार करती है। और इश्क में शुकी है ना, ये भी बीमार कर दी है। इसके बाद ज़बूर 38 उसकी 3 से 7 आयत पढ़ेंगे। दाऊद उसकी हड्डियां से भी बीमारी आ गई है, उसके सोचों में बीमारी है, खुदा का कहर उसकी जिंदगी पर है। और इस कदर बीमारी को और इन सारी चीज़ों को महसूस करता है कि अगर थोड़ा सा पढ़ कर देखें तो वहां पर लिखा है, मेरे जख्म हुए बदबूदार कमाल, सड़े बिल्कुल मेरी बेअकली दे नाल, कुब्बा हो मैं झुक गया रोंदा सुबह शाम। क्यों? दाऊद अंडर जजमेंट है, दाऊद अंडर जजमेंट है, खुदा के कहर के नीचे है। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में सिन होता है। दाऊद को ये एक बात है कि दाऊद को समझ आ गई थी कि मैंने गुनाह किया है। और गुनाह क्या था इसका? इसने सिपाही को मरवा कर उसकी बीवी हत्या ली थी। बस वेरी सिंपल सी बात। बस औक़ात हमारी जिंदगी में सिन होता है और फिर खुदा का कहर भी रहता है हम पर। खुदा का कहर भी बीमारी लाता है, खुदा का कहर भी बीमारी लाता है। इसलिए वो कह रहा है कि हड्डियां भी गल गई ने, कुब्बा भी मैं हो गया, ना मनो दिन आराम है तो ना मनो राती आराम है। किसी जगह पर वो अपने आप को शफा याब नहीं देखता है। बस औक़ात हमारी जिंदगी में भी ये स्पिरिट काम करती है कि हम खुदा के कहर को बार बार दावत देते हैं। खुदा के कहर को कभी दावत ना दें, कभी वो काम ना करें जिससे खुदा मना करता है, और फिर उसको रूटीन वाइज करना। और फिर उस ओहदे पर जहां पर कहां था, ये इसको बहुत बड़ा, ये खुदा का बंदा था, बहुत बड़ा, लेकिन इसने उतना ही बड़ा गुनाह भी किया। अपने मामूली सिपाही की बीवी को हथियाने के लिए ऐसी प्लानिंग से मरवाया कि उसकी बीवी को ले सके। खुदा को यह बात पसंद नहीं आई थी। इससे खुदा का बस औक़ात जब हमारे खानदान में गलत रिलेशन होते हैं, मियाँ बीवी के अंदर, बच्चों के अंदर, या हम बार बार कोई ऐसा काम करते हैं जिससे खुदा नाराज होता है, हम करते चले जाते हैं। दाऊद को तो समझ आ गई कि मैंने गुनाह किया, इसलिए कहता कि मैं गुनाहगार है। लेकिन आज का चर्च ये कबूल नहीं करता है, तो वो भी अंडर डिजीज रहते हैं, बीमारी के नीचे रहते हैं जब खुदा का कहर हमारी जिंदगी में होता है। इसको कहते हैं कुड़न के सबब से, कुर्दा। पहला मैंने बताया मनून, कुर्दा, और दाऊद के बारे में बताया कि कहर के सबब से बीमारी। और दूसरी एक और बात, दानियल की किताब उसका 8वां बाब 27वें आयत में लिखा है, मुझ दानियल को गश आया और चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। ये बेसिकली परेशानी है, परेशानी है, क्योंकि परेशानी की वजह से लिखा है कि मैं गश पड़ गया। जिन्होंने कहते बेहोश हो जाना,
एनास्थीसिया दिता होंगे, बेहोश हो गया है और फिर चंद रोज़ पड़ा रहा उसी हालत में ना। खुदा के कलाम में ये लिखा है, आप पढ़ सकते हैं जाकर, दानियल 8:27 है, मुझ दानियल को घास आया और चंद रोज तक बीमार रहा। ये भी कौमे में चला गया, कुछ भी हो गया, क्योंकि गाशते गाशी और नजर च होश नहीं रही। कलाम में लिखा है बुनियादी तौर पर परेशानी थी, हुकूमती मामलात थे, कुछ भी कह रहे हैं। बस का जब हम परेशान रहते हैं ना, क्यों फिलिपियों के खात में बार बार कहते हैं फिर मैं कहता हूं खुश रहो, फिर मैं कहता हूं खुश रहो। ये परेशानी भी बीमारी लेकर आती है कि इन्हें चेहरे थे ना परेशानी, जो ही मिलो परेशानी नजर आते हैं, अफलातून और उससे लगते हैं शक्लों कि पर की सोचते रहते हैं, सोचते रहना सोचते रहना सोचते रहना, कुड़ते रहना, बोलते रहना, शिकायत करते रहना, याने ते अक्या बंदा, बुढ़ी ते अक्या बंदा, हर टाइम अक्या ही रहना, ये आपको बीमार कर देती है। यहाँ पर भी परेशानी बीमारी लाती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा पर भरोसा रखें और हम ये गाते रहें ज़बूर 40 में क्या लिखा है, पाँव में जेकर नाले पानी, खौफ ना करिए पहाड़ा। ट्रस्ट इन गॉड, यही वो मौका होता है आप खुदा पर भरोसा करें खुदा पर। कुछ खुदा कर देता है सब कुछ, क्योंकि खुदा ने फरमाया था। आज से कितने हजारों साल पहले खुदा ने कहा था, मैं यहोवा राफे हूं, मैं प्रोवाइडर हूं। खुदा प्रोवाइड भी करता है, खुदा शिफा भी देता है। जस्ट ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पर भरोसा रखें, सब कुछ कर देता है। और चूंकि हम खुदा पर भरोसा नहीं रखते हैं, पता परेशान लोग कौन होते हैं, जिनका ट्रस्ट खुदा पर नहीं। लेकिन जो ये समझते हैं कि खुदा मेरा मुस्तहद मददगार है, मेरी पनाह है, मेरी कुव्वत है, वो बचे रहते हैं। खुदा उनके लिए मिरेकल जारी रखता है। फिर ये खुदा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाता है, खुदा कैसे चीज़ें देता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ये अपने शिफा के लिए, अपने नजात के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी नस्लों के लिए ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पर भरोसा रखे, उसके कलाम पर भरोसा रखे, बोलते रहे खुदा तू मेरा शाफी है, तू मेरा शाफी है, तू मेरा शाफी है, तू मेरा हीलर है, तू मेरा राफे है, तू मेरा प्रोवाइडर। हालेलुया, जोरदार ताली अपने जिंदा खुदा के लिए। ये खुदा का बंदा है अहज़िया, बीमार हो गया है बंदा खुदा का, खुदा की कौम का बंदा। बंदे अपने भेज रहा है देवता के पास, ज़बूलून के पास। जरा झाती मार के दसो साड़ी गां किने कड़ी है। कई बार मुझे भी फोन आते हैं, जरा देखना है की है। मैं भाई मैनू तो आपे नहीं लभदा कोई, तुहानू अगे दसा बड़ी भैड़ी बीमारी है। लोग चाहते हैं कोई सानू दसे तुहाडी फुफी ने तुहाडे ते टूने कीते जी। हम ये सुनना चाहते हैं, तेरी मासी आई से तेरे घर, उन्हें कोई मिठाई च लिया। हम ये सुनना चाहते हैं कि कोई है मैं बताए, बड़ी खुश होने उन्हें बड़ा रहा नहीं समझा जो हर दस भी त्याड़े ते गमले च बदरूआ पईयां ने, त्याड़ा ते बाथरूम भरया बदरूआ दे नाल। हमें लगता है कि हमारा हाल निकल आया, इलाज नहीं होता। ये इस्राइल का बादशाह है, हुक्मरान है, इसे मसा किया गया होगा, अपने बीमार हो गया है। एलिया के पास नहीं भेजा, कहां भेजा है? देवता के पास भेजा है। खुदा को पता चल गया कि खुदा ने कहा एलिया जाके उन्हें कह दे कि जेड़े बिस्तर ते बीमार है ना, इन्हें तो उठन नहीं पाएंदा, तो तेरी मौत इतनी हुई थी। जो लोग गैर मबूदों की परस्तिश करते हैं, जो काली चीजों पर भरोसा करते हैं, कभी गले च पाली तो कभी बच्चे पैदा होया नहीं है, कि लाल रंग दिया तो डोरी लभदी नहीं, तो काली दी सारों लभदी है। काली डोरी लभदी है, मनु ये अज तक नहीं समझ आई कि लाल डोरी क्यों नहीं लभदी। बच्चा पैदा होया काली चीज पा देने, भाई छितर ही नहीं बस बंद है, वो भी बंदा बन लेकर। हाँ, कई लोग ना छितर बने होंगे गड्डी में घर दे भी कुजियां लाई होंगे ने। लिखा कि जो लोग गैर मबूतों की परस्तिश करते हैं, उनके पीछे चलते बीमार ही रहेंगे, बीमार रहेंगे। अदर चीजों पर भरोसा और ट्रस्ट, और उनके पास पूछना कभी ना ऐसा पूछे। दुआ किसी खादम से भी दुआ करें तो भले लोग दुआ कर दे। अब पूछने वाली दसन वाली बहुत प्यारी बीमारी है। आप खुदा से
चलते चलते आप उसी बियाबान में निकल जाएंगे जहां पर फंस जाएंगे। कभी भी ऐसी आदत ना अपनाएं। सिंपल ही कहें, किसी ने ना कहो साढ़े वेख्यो कि ये भला पीछे कौन है साढ़े। वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। अपने आप को हमेशा, पिछले सुल्तान के खून पर एक हमारी मुस्लिम बहन थी, उधर ही भी नवे नवे सा वो चर्च भी आती रही है, तो पता नहीं क्या वो वाकई मैं दसिया मैं त्याड़े बेड़े त्याड़े खूह में जो कुछ दसनों सही निकल आया। बड़ी पुरानी बात करो, वाकई ठीक निकला है। उसके बाद वो औरत ना बस रोज ही दुआ कराने आ जाए करे। मैं ये तो काम खराब हो गया। मैंने उस वक्त से एक ही केस ऐसा हुआ, लेकिन अगर मैं तौबा कर नहीं, ये तो मेरे पीछे पै जाते तो यीशु दे वाले वेखन देने। हम तो राह तैयार करने वाले हैं। हम कौन है? राह तैयार करने, अपने पीछे नहीं लाना। दसन नूं टेवे तो नहीं वैसे ही बंदा चल जाता, इन्ना तजर्बा हो तो नहीं तवा चल जाता। ना भी डॉक्टरी की होए तो गोलियां लिख के देने ठीक हो जाते। बाकी इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना पाकिस्तान में। क्यों डॉक्टर साहब त्यारी मौजूदगी हर बंदे डॉक्टर के मरीज होए, जिन्हें जाना 100 गया पता करें 100 गोलियां दस के आंदा। तो ये मतलब कुछ चीज़ें नुस्खे से हो जाती हैं, लेकिन वेरी केयरफुल। कभी किसी को दुआ के लिए कहें, लेकिन ये ना कहे चाहती थे मारियो कौन है। आप गलत रोड पर चढ़ गए हैं, आप किसी गलत जगह में फंस गए हैं। वेरी केयरफुल। और खुदा को पता चला ये मेरा बंदा है तो पता करवा दिया दूजिया को कि देख देख के पता करवा लो। खुदा ने कहा जिदे ते चढ़िया ना बीमारी के बिस्तर ते उत्थे ही मरेगा, और मर गया। हुआ क्योंकि गैर मबूतों की पैरवी करना, या कि सियाने को जाना, या ऐसी चीज़ों को यूटिलाइज करना। आप ही ना जाना चाहे तू करा लिया ही, समझे ना। कई बार आप ही नहीं चल मनु कोई घर वेखना ले करा लिया ही, बस बक्से च रख छोड़ा, संदूक च रख छड़ा, कि किसी को पता चलना है। बस का लोग ऐसे ये मसीहत में लोग करते हैं। ये भी यहूदी कौम से, ये वो जिसको खुदा ने चुना है, लेकिन पूछ कहाँ से रहा है? ज़बूलून के देवता से। खुदा को ये ललकारने वाली बात होती है। बीमारी में मर जाए कोई मसला नहीं है, कोरोना में मर जाए कोई मसला नहीं है, बट कभी गलत रास्ते पर ना जाए, कभी किसी ऐसे चीज को ना पकारें जो खुदा से आपको दूर कर दे। बीमारी आपसे, आपकी नस्लों से खत्म नहीं होगी, वो बीमारी जनरेशन टू जनरेशन चलेगी। और लिखा है खुदा के कलाम में, और जो कोई मक्के खरूज ही की किताब में लिखा है, मैं उसको तीसरी चौथी पुस्तक उसके बाप दादा के बदकारी की, गुनाह की क्या देता हूं? सजा देता है। इसलिए हमेशा याद रखें। गिनती 21 बाब में बहुत सारी स्टोरी है, और वहां पर भी लिखा है कि बनी इस्राएल खुदा से क्या आगे? आजज आगे चक्कर लगाना पड़ा, लंबा चक्कर लगाना पड़ा, जानवर बच्चे सारी चीजें। तो लिखा है बनी इस्राएल क्या आगे? आजज आगे, तंग आगे। जिन इस्राएल ने कई बार अच्छा अब्बा आवाजा मारन दिया, चलो उठ जाओ गिरजे जाना जे, अज ही तो सोना ही, रोज तो स्कूले जाने, यूनिवर्सिटी जाने, काम ते जाने, अज ही तो तवार का दिन सी, तो अब्बा ते अम्मा आवाजा मारन दियां तो बंदा तंग नहीं पै जाता, ये सानू क्यों उठाण डे ने? आई समझ किसी नूं? आई समझ? ये भी बनी इस्राएल भी तंग आ गए खुदा से। और फिर क्या हुआ था? खुदा ने क्या भेजा था? जलाने वाले सांप। कलाम याद रखा कर मेहरबानी करके। खुदा ने क्या भेजा था? और ये पता सांप कैसे थे? ये वाकई साड़ देंगे हर बंदे, जिस आजकल वो कंप्यूटराइज फिल्मां नहीं आंदियां, ये वाकई वो सांप थे। वाकई ही जिसको ये काटते थे उस बंदे में आग लग जाती थी। ये सच है, उसे तड़प तड़प कर मार जाता था। लेकिन फिर रोने लगे। खुदा ने फिर मूसा से इरशाद कि खुदा ने सिखा कि बल्ली बना और उस पर क्या कर ले? कौन सा सांप लटका दे? पीतल का सांप। पीतल का सांप क्यों? सोने का क्यों नहीं? चांदी का क्यों नहीं? कुर्बान गाह पीतल की थी, ये भी सच है। लेकिन एक सच ये भी है, जब उस दांत को सांप बनाना था,
सुने, जब सांप बनाना था मूसा ने, तो उस पीतल को आग में डालना था, उसको ढालना था, और ये उस सांप की जजमेंट थी, ये उसकी अदालत थी। चूंकि सांपों ही ने काटा था, इसलिए जो बलि पर लटकाया गया था वो भी सांप ही था। चूंकि इंसानों ने गुनाह किया था, इसलिए एक इंसान ही को कुर्बान होना था, यीशु मसीह को। ये उसकी जजमेंट थी। इसलिए जब यीशु की सलीब की खून की बात होती है, तो हम ये कहते हैं उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। पतरस के खत में लिखा है, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया है, कमजोरी को उठा लिया। यानी कि जो कुछ भी था उस दौर में भी, मूसा के दौर में भी, जो कोई उस सांप, जो पीतल का सांप था, देखता शिफा पा जाता। कितनी ही बीमारी बड़ी लंबी पुरानी क्यों ना, जो भी देखता, कितना ही जहरीला क्यों ना हो गया हो, लेकिन जो कोई भी उसको देखता। और इसी तरह आज भी जो कोई यीशु की तरफ देखेगा, जो कि उसकी सलीब की तरफ देखेगा, जो कि उसके खून को अपनी जिंदगी में लेगा, वो शिफा पा जाएगा। यही इसमें रेवोल्यूशन था। ज़बूर 100 उसकी 37 है, सुने ध्यान से। और इसराइल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया। क्या लिखा है जी? और उसके कबीलों में एक भी कमजोर आदमी, मेरे पीछे के, और उसके कबीलों में एक भी कमजोर आदमी ना था। जब ये 20-25 लाख लोग निकले हैं ना मिस्र से, 40 साल रहे हैं, मरे हैं, सारे मरे हैं, लेकिन वो आफतों से मरे हैं या अपना टाइम उनका हो गया था, मरे हैं। उनमें से किसी को कोरोना नहीं था, किसी को हेपेटाइटिस नहीं था, किसी के दिल में सराख नहीं था, किसी को ट्यूबरक्लोसिस नहीं थी, किसी को टांगों की दर्द नहीं थी, किसी का जिगर खराब नहीं था, किसी का मैदा खराब नहीं था, किसी के किडनी के डायलिसिस नहीं हो रहे थे। हालांकि मार सारे गए, लेकिन बीमार कोई नहीं थी, उनमें से कोई बीमार नहीं था। क्या वजह थी, क्यों नहीं थे बीमार? नाफरमान थे, इसलिए आफत आती थी, उसमें 60-70,000 ऐसे निकल जाते थे। बीमार उनमें से कोई नहीं था। यहां पर लिखा है कि उनमें से कोई कमजोर नहीं था। फिजिकली दे आर राइट, दे आर फिट, फिजिकली वो फिट थे। और जब वो निकले हैं तो खुदा ने उन्हें सोना चांदी भी दिया, खुदा ने उन्हें सेहत भी दी है। अगर मरे हैं अपनी आदत हो तो मरे हैं, अपने बिहेवियर की वजह से मरे हैं। आपको याद होगा कि जब वो मिस्र में थे तो खुदा ने मूसा से कहा था, आखिरी जब वो पहली फसा होनी थी, तो क्या खुदा ने कहा था? क्या लेना है? हाँ, दलेर से बोले, कोई बात नहीं, बरा लेना है। बेब बरा होना चाहिए कि नुक्स कि बीमार नहीं होना चाहिए। और खानदान में 3 लोग हैं तो बड़ा बड़ा है, इसलिए लिखा था कि वहां पर किसी और खानदान को साथ मिला लेना है। मेरे अजीज, इस बात को याद रखें, आज हम एक करेंगे और आप इसको घर में भी कर सकते हैं। पहला निकालेंगे, पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 24 आयत मैं फिर पढ़ूंगा। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि गुनाहों के तबार से मरकर रास्तबाजी के तबार से जिए। 24 आयत फिर से, वो आप हमारे गुनाहों को अपने किस पर लिए हुए? बदन पर लिए हुए। कहां पर चढ़ गया? सलीब पर चढ़ गया। ये जो खून था, ये जोफे के जरिए चौखटों पर, दरवाजों पर लगाना था। ये कहां पर लगाना था? क्योंकि खून पीना मना था। ये कहां पर लगाना था? चौखटों पर। We live under the blood of Jesus Christ. लेकिन जो उसका भरा था, उसका गोश्त खाना था, बड़े का गोश्त खाना था। इसलिए सारी फैमिली ने खाना था और एक ही दिन में खाना था, और उसको बाकी नहीं छोड़ना था, और उसको भून कर खाना था। और वो बड़े का गोश्त जो उन्होंने खाया, जो बड़े का गोश्त उन्होंने खाया, उस बड़े के गोश्त ने इतनी ताकत दी
کہ ان سفر میں وہ بیمار نہ ہوئے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی جو بیمار دعا کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بھی روٹی ہے یا یسوع کا بدن ہے۔ موسٹلی ہم یسوع کے خون کی بات کرتے ہیں، ہم یسوع کے بدن کی بات نہیں کرتے۔ ہم یسوع کے خون کی بات کرتے ہیں، ہم یسوع کے بدن کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا زور، ہمارے گیت بھی یسوع کے خون کے بارے میں ہونے چاہیے، لیکن بدن بیچ میں گول ہو جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ برے کے بدن کو اپنی زندگی میں لیں گے۔ آپ ایمان کے ساتھ اس روٹی کو لیں گے جو بیمار ہیں۔ اگر آپ بہت بیمار ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ دن اس کو کھائیں، روٹی لیں، خود ہی دعا کر لیں، یسوع کے کلام کو بولیں، یسوع تیرے بدن کے وسیلہ سے میں شفا پاتا ہوں، تیرے خون بہانے کے وسیلہ سے۔ لیکن آپ نے بدن کو فوکس کرنا ہے، آپ ایکسرسائز کریں اس کی، آپ فیتھ سٹیپ لیں کہ یسوع آج بھی تیرے بدن میں قدرت پائی جاتی ہے، اور اس کے خون میں قدرت ہے تو اس کے بدن میں بھی قدرت ہے۔ آج بھی اس کا بدن، اور بنی اسرائیل نے وہی کھایا تھا، خون انہوں نے نہیں پیا تھا۔ خون صرف اس لیے تھا کہ وہ پروٹیکٹ رہیں، کوئی اور چیز نہ آ جائے، فرشتہ نہ آ جائے موت کا، وہ چوکٹوں پر تھا۔ لیکن یہ بدن انہیں کھانا تھا، اور اسے لکھے اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے۔ یہ چیز چرچ سے مس ہے، یہ چیز چرچ سے مس ہے۔ ہم اس کو اتنا ایکسرسائز نہیں کرتے، خون کی کرتے ہیں، بدن کی ہم پریکٹس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آج میں چاہوں گا آپ ایمان کے ساتھ اس بدن میں شامل ہوں، اور یقیناً 2 ہفتے کے بعد آپ گواہی دیں گے کہ یسوع کے بدن نے آپ کو شفا دے دی ہے، یسوع کے بدن نے آپ کو کاروبار کو ٹھیک کر دیا ہے، یسوع کے بدن نے آپ کے بچوں کو ٹھیک کر دیا ہے، اور یسوع کے بدن میں شامل ہونے سے آپ کے لیے برکت کے دروازے کھل گئے۔ بٹ دس از اے فیتھ اسٹیپ۔ یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسرسائز ہے یا یہ نہیں، یہ ایک فیتھ اسٹیپ ہے۔ آپ نے ایمان لانا ہے کہ یسوع نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے بدن کو، میں پھر سے پڑھتا ہوں، ذرا پڑھیں، لکھے وہاں پر کیا لکھا ہے، پہلا پترس 2 باب 24 ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے کہاں پر چڑھ گیا؟ صلیب پر چڑھ گیا۔ یعنی کہ اسی وہ زندگی کا درخت جو موسیٰ کو نظر آیا تھا، یا وہ بلی جو موسیٰ نے بنائی تھی، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مار کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ ہمارے لیے اس نے اپنا بدن دے دیا ہے، ہمارے لیے اس نے اپنا خون دے دیا ہے۔ لیکن آج ہم ایمان کے ساتھ آپ کہیں کہ خدا تیرے بدن میں شفا پائی جاتی ہے، تیرے بدن، میں تیرے بدن کو لیتا ہوں، وہ بدن جس بدن پر تھوکا گیا، جس بدن کو کوڑے مارے گئے، جس بدن کو اذیت دی گئی، جس بدن کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، میں تیرے اسی بدن کو لیتا ہوں جو میرے گناہوں کی معافی کے لیے اور میری شفا کے لیے دیا گیا ہے، میری شفا کے لیے، مجھے لعنتوں سے رہائی دینے کے لیے یسوع تو نے اپنا بدن دیا ہے، مجھے لعنتوں سے چھٹکارا دینے کے لیے یسوع تو نے اپنا بدن لیا ہے۔ میں تیرے بدن کو آج ایمان کے ساتھ لیتا ہوں، اور میں اس ایمان کے ساتھ لیتا ہوں آج کے بعد بیماری میرے خاندان میں نہیں ہوگی۔ میں اس ایمان کے ساتھ تیرے بدن کو لیتا ہوں، آج کے بعد کورونا میرے خاندان میں نہیں ہوگا۔ میں اس ایمان کے ساتھ لیتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی خاندانی لعنتیں ہمارا پیچھا نہیں کریں گی، کیونکہ تو اب بدن کو لیے ہوئے، اس بدن پر ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے، ہماری لعنتوں کو لیے ہوئے، ہماری کمزوریوں کو لیے ہوئے، ہماری تمام نالائکیوں کو لیے ہوئے، ہماری تمام بیوقوفیوں کو لیے تو صلیب پر چڑھ چکا ہے۔ اور میں ایمان لاتا ہوں آج بھی تیرے خون میں اور آج بھی تیرے بدن میں شفا پائی جاتی ہے، کیونکہ میں خدا تیرے کلام پر ایمان لاتا ہوں۔ دیکھ میں خدا تیرا شافی ہوں، میں یہوہ رافع ہوں، میں تیرا ہیلر ہوں، میں تجھے رفع کرنے والا ہوں، میں تجھے ٹھیک کرنے والا ہوں۔